Hi, this is Ritesh Deshmukh, and you're watching me on Times of India TV. I think it's a format that I have always adored and loved, and engaged myself as a viewer. And I'm just happy that I got the opportunity to host the Marathi Big Boss. So comparison, क्योंकि एग्जिस्टिंग शो पर जब कभी कोई नया होस्ट आएगा वो कंपैरिजन तो होगा, सो आई डोंट थिंक दैट शुड बॉदर यू. See, Salman Bhau is something else where no one in the world can host this format the way he does. He is iconic, he's epic. Mahesh Manjrekar was fantastic. तो यस, तो उस बार लगता था कि अरे अगर मैं कंटेस्टेंट बन के जाता तो क्या होता. तो आई शुड डिस्कस मैं जाऊँगा कंटेस्टेंट बनकर अंदर. तो she used to be like, yeah, it's quite capable that you will last for a few days at least. Jinla is someone जो हमेशा मुझे support करती है. She thought that since I like the show so much, and she knows how passionate I am about Marathi language and films. So she says something that you would love doing it. So I'm excited about this new role. Hello everyone, welcome to Times of India TV. I'm Vijay Tiwari and today I have with me the dashing, the Laibhari Ritesh Deshmukh. Ritesh, welcome to Times of India. Thank you so much. You have been there, done that when it comes to hosting, but Big Boss Marathi is something different. Excitement, nervousness, pressure, comparisons, बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पे, along with the धमाकेदार promo. What do you have to say? I think it's a format that I have always adored and loved, and engaged myself as a viewer. Yeah. And I'm just happy that I got the opportunity to host the Marathi Big Boss. It's exciting. I wouldn't say I'm nervous, but excitement would be the right word. And also eager and anxious to know who the participants are, contestants are, and how things will unfold, because there are a lot of new things in terms of even the way it's going to unfold. So there's a lot of newness to this season, starting with the host itself. So I'm pretty excited. Yeah, you know, when we talk about Big Boss, जो पहला नाम जहन में आता है हिंदी के लिए सलमान खान, जो आपके भाऊ हैं, और महेश मांजरेकर मराठी के लिए. ऐसा हो ही नहीं सकता कि आम जनता जो है वो कंपैरिजंस ड्रॉ ना करे. आप उनके चहीते हैं लेकिन वो कंपैरिजन जरूर ड्रॉ करेंगे. उसके लिए आप कितने ओपन हैं? सो कंपैरिजन, क्योंकि एग्जिस्टिंग शो पर जब कभी कोई नया होस्ट आएगा वो कंपैरिजन तो होगा, सो आई डोंट थिंक दैट शुड बॉदर यू. बिकॉज चाहे see, Salman Bhau is something else where no one in the world can host this format the way he does. He is iconic, he's epic. Mahesh Manjrekar was fantastic. He has his own style, inherent style, and I have known him personally, and I feel the way he does it, there's a certain swag to the way he does it. The way he holds court, or the audience, when I'm talking audience, I mean the contestants, is phenomenal. So he has his own style. So yes, comparisons are bound, and I'm not bothered by that. Yeah. But आपने बाहर एक बात कही थी कि if जब ऑफर आया या जो भी आप डिस्कशन कर रहे थे, आपने कहा कि अगर कंटेस्टेंट जाऊं क्या नहीं, एक जहन में आया था आपके. नहीं, एक्चुअली बहुत बार the way I say it and way it's perceived something else. मैंने कहा था कि जब मैं बिग बॉस शो देख रहा था तो कभी कभी ऐसा लगता है यार, अगर मैं कंटेस्टेंट होता तो मैं किस तरह रिएक्ट करता. या इट्स सो एक्साइटिंग अ फॉर्मेट यार, इट्स अ गेम शो, राइट, इवेंचुअली. एंड यू आर ऑलवेज इन्वॉल्वड आल्सो, आप ट्वीट वगैरह भी करते रहते हैं. बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता हूँ, और मतलब अगर मैं 100 बार सोचता हूँ मैं ट्वीट करूँ तो मैं एक बार ट्वीट करता हूँ. तो आप समझ सकते हो कि मैंने इतनी बार सोचा कि मैं ट्वीट कर दूँ कि इस पर उस पर क्या होता है कि समटाइम्स व्हेन यू ट्वीट एक इंसिडेंट पे तो लगता है कि अरे I am supporting a particular person, to which I don't want to, because then suddenly it slightly becomes unfair. Because it's open game for public to view and watch and participate. तो yes, तो उस बार लगता था कि अरे अगर मैं कंटेस्टेंट बन के जाता तो क्या होता. तो I should discuss मैं जाऊँगा कंटेस्टेंट बनकर अंदर. तो she used to be like, yeah, it's quite capable that you will last for a few days at least.
उनका क्या रिएक्शन था जब उन्हें पता चला कि आपके पास ये ऑफर आया है एंड यू आर प्लानिंग टू डू इट? What did she say? No, she was someone, Jinle is someone जो हमेशा मुझे support करती है. She thought that since I like the show so much and she knows how passionate I am about Marathi language and films. Yes. So she says something that you would love doing it. So I'm excited about this. Yeah. And you share a very close bond with Salman also. तो क्या उनके साथ कोई discussion हुआ या? अभी तक तो नहीं हुआ. अभी तक नहीं हुआ. लेकिन अगर उनके होस्टिंग में से एक कुछ आपको पिक करना हो क्वालिटी जो शायद आप अपने तरीके से यूज करना चाहेंगे, वो क्या होगा? आई थिंक द बेस्ट क्वालिटी अबाउट हिम इज दैट ही इज हिमसेल्फ. वो कभी भी ऐसा दिखावा नहीं करना चाहते कि वो कोई और है. वो जैसे है वैसे ही है. एंड आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हर होस्ट के लिए कि डोंट ट्राई टू बी समवन एल्स, बी योरसेल्फ. राइट. ऑल्सो यू नो व्हेन इट कम्स टू बिग बॉस, ये एक ऐसा शो है जो ह्यूमन नेचर के ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है, यू नो. तो आपकी क्या लर्निंग रही है एज अ कंटेस्टेंट को देख देख के अभी तक, जो एज अ व्यूअर आपने देखा, आपकी क्या लर्निंग रही है जो आप शायद अपने होस्टिंग में भी यूज़ करने की सोचेंगे? नहीं, क्या होता है कि जब आप ऐसा शो देखते हो तो एज एन ऑडियंस आपके एक व्यू पॉइंट्स होते हैं. फिर जब वीकेंड का वार आता है तो आप ये देखना चाहते हो कि क्या आपके व्यू पॉइंट्स होस्ट से मैच करते हैं. बिकॉज होस्ट तभी डिक्टेट करता है कि इवेंचुअली व्यू पॉइंट्स कैसे होने चाहिए, किस नज़रिए से. हो सकता है कि आपके व्यू पॉइंट्स शायद होस्ट से मैच भी ना करें, विच इज़ ऑल्सो ओके. बट इन जनरल सीख यही है कि जहाँ गलत हो रहा है उसे पॉइंट आउट करना, और जो सही जा रहा है उसे क्रेडिट देना. और जो शायद कभी कभी क्या होता है कि कुछ कंटेस्टेंट शायद खामोश हो जाए, दे जस्ट प्लेइंग अराउंड, तो उनको बताना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे रहकर तो आप घर के बाहर ही चले जाओगे. इफ़ यू वांट टू स्टे इन द शो यू हैव टू बी इन्वॉल्व्ड इन द शो. एक लास्ट क्वेश्चन जाने से पहले, यू हैव ऑलवेज लेड अ वेरी नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल लाइफ, बट व्हेन इट कम्स टू बिग बॉस, ऐसे लोगों के जहन में, नॉर्मल ऑडियंस के, इट्स अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल शो, क्योंकि यू नो पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ कम एंड स्टे टुगेदर. तो ऑब्वियसली बात है, जहाँ 4 बर्तन होते हैं तो वो बजेंगे ही, ऑब्वियसली बात है. व्हाट मेड यू से येस टू द शो? यू नो कि कॉन्ट्रोवर्शियल नेचर है, यू नो आपको लोग हमेशा वेल बिहेव्ड देखते हैं, ये एक शो है जो बहुत एग्रेसिव नेचर का है. तो आपका क्या कहना है इस पर? आई थिंक होस्ट को कोई कंट्रोवर्सी करने की ज़रूरत नहीं है. इट्स नॉट दैट ही इज़ पार्ट ऑफ द कंट्रोवर्सी. अगर कोई कंट्रोवर्सी हो रही तो उनको सुलझाना, समझाना, ज़रूरत पड़े तो सीधा करना, तो वो सब पार्ट एंड पार्सल है. तो वो जैसे जैसे वो चीज़ें आती जाएंगी उस तरह उसका रिएक्शन होता जाएगा. जाने से पहले ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे जो आपको बिग बॉस मराठी में देखने वाले होता है? नहीं, सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि बिग बॉस मराठी जल्दी आ रहा है और एक नए तरीके से आपको वो शो देखने का मौका मिलेगा. कुछ नई चीज़ें हो रही है नए होस्ट के साथ. सो सी यू.